ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਵਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਭਿੰਨੀ ਮਾਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰੇਲ ਭਿੱਜੀ, ਰਹਿਣੜੀਏ ਰਾਤ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਓਗੇ, ਥੋੜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਜਾਗੇ मन जाग रहे हैं, संत जना संत जन मेरे संत जन जाग रहे हैं, राम प्यारे उस परमात्मा ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੇਲ ਭਿੱਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਕੇ 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤਰੇਲ ਭਿੱਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਗਰ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਸ ਕਾਵਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦਨਾ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣ, ਚਾਂਦਨ ਚਾਨਣ, ਆਂਗਨ, ਆਂਗਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ, ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਮਤਲਬ ਚਾਨਣਾ, ਅਸਲ ਚਾਨਣਾ ਆਂਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਰਾਧਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਨੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਰਾਧਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ
ते किंदी करनी है? हर हर नाम आराधना। जे तुसी किसी दी भी आराधना करते हो, किसी दी भी प्रार्थना करते हो, तो तुसी जे किसी दी आराधना भी करनी है तो तुसी उस उत्तम परमात्मा की आराधना करनी है, और किसे भी दी आराधना नहीं करनी है। एवें नहीं कि आप किसी होर मगर लग जाइए, अखोती साधा दे मगर उन्हां दी आराधना करन लग जाइए। तो इत्थे आख्या है कि आपां नूं आराधना करनी है उस परमात्मा की। और इस शब्द राही श्री गुरु अर्जन देव जी जो दसना चाहते हैं, इनका जिहड़ा केंद्री भाव है वो आ है कि मनुख नूं हिरदै रूपी विहड़े दे विचों असल चानण नूं, वो परमात्मा रूपी जिहड़ा चानण अपने अंदर जो जोत जग रही है उस नूं पछाणना है ते उनकी आराधना करनी हैगी है। उस तो अगला, मुंह लालन स्यों प्रीत बनी। मुंह मेरी, लालन भाई लाल, लल्ला लालन शब्द ब्रिज भाषा तो प्रभावित, पहला संस्कृत च इहदी वरतों होंदी सी, अजकल हिंदी च होंदी है। मुंह लालन प्यारा, मेरी प्यारे नान, प्यारे स्यों प्यारे नान प्रीत बनी। उस नाल मेरा प्रेम बन गया है, मेरा परमात्मा प्यारे परमात्मा दे नाल प्रेम बन गया है। अगे तोरी ना टूटे, जे तोड़ते हैं तो टुटदी नहीं, छोरी ना छूटे, और जे छड़ते हैं तो छुटदी नहीं। ऐसी माधो खिचतनी मेरे ते माधो दे अंदर, उस परमात्मा दे अंदर ऐसी खिचोतानी चल रही है कि जे मैं छड़ना चाहवा तो छड़ नहीं सकता, जे तोड़ना चाहवा तो तोड़ नहीं सकता। ऐसी प्रीत है जो उस परमात्मा नाल हैगी है मेरी। ते आही गल गुरु साहब इत्थे कहना चाहते हैं। इस काव बद दे विच आ दसिया गया है कि आपां नूं उस परमात्मा दे नाल है जिहड़ी बहुत ही गूढ़ी प्रीत रखनी है, जिहड़ी कि टुटे ना। अटुट प्रीत है जिहड़ी वो परमात्मा दे नाल रखनी है। इस तरीके नाल जदों तुसीं सही थां विश्राम लगाओगे, बाणी नूं पढ़दे टाइम अगर सही थां विश्राम लग जावे तो उनका जिहड़ा अर्थ है वो सारा समझ आ जाता है। हाँ बई, 3 शब्द सीगे। पहला भिन्नी रहनड़ीए, बई अमृत वेले उठ के उस परमात्मा की बंदगी, विकारां त्याग के परमात्मा नाल जुड़ना। फिर अगली, चांदना चांदन आंगन, हिरदे रूपी वेड़े दे अंदर उस परमात्मा की असल जोत नूं पछाणना ते उस नाल जुड़ना। ते इस विच सी प्रीत, उस परमात्मा की सच्ची प्रीत दे विच डुब जाना। तोरी ना टूटे, बई ना टूटे ना छूटे। आ सीगा बई जिहड़ा 11वीं जमात दे अंदर सी, वो मैं समझाया। और तुहाडे कोल किताब होनी है, तुसीं उत्थों पढ़ियो, बड़े ही आनंदमई बाणी है, हर एक तुक है तुहानूं समझ आ जाएगी। हुण उस तो बाद आपां रचनावां दी गल करदे हां। हुण है जिहड़ी रचना गुरु साहब दी 52 अखरी, वैसे आ याद रखने वास्ते एवं लिखे बई 52 अखरी बाणी है, वो गुरु अर्जन देव जी की है। और इस दे विच हिंदी वर्णमाला के उत्ते आधारित हैगी है, परंतु इन दे विच जिहड़ी शब्दां दी जिहड़े लिखे गए शब्द ने उनकी जिहड़ी तरतीब है वो हैगी है जिहड़ी वो एवें लिखे गए है, कक्का खक्खा गग्गा सस्सा एस, परंतु है कि हिंदी वर्णमाला के उत्ते आधारित हैगी है। परंतु जिहड़ी वरतों कीती है शब्दां दी, वो हिंदी के शब्दां नूं पंजाबी के शब्दां दी ही वरतों कीती गई है। कक्का खक्खा गग्गा इस तरीके नाल जिहड़े अखरां नूं संबोधित किया गया है। और इहदे विच की है, पहला सलोक है, फिर पौड़ी है, फिर सलोक है, फिर पौड़ी हैगी है। इस तरीके नाल 55 पौड़ियां ने। और जिहड़ा पहला सलोक है उस मंगलाचरण है, और उस लिखिया हुआ है ये आद ते अंत दे विच पढ़ना हैगा है। हाँ जी, और इनकी राग है जिहड़ी वो गौड़ी राग है। ते इस विच की है 52 अखरी हिंदी वर्णमाला ते आधारित, हिंदी
वर्णमाला ते आधारित। पर अखरां दा रूप है जिहड़ा, अखरां दा रूप वो हैगा है पंजाबी वाला बई, सस्सा कक्का गग्गा, इस तरीके का। पहला सलोक फिर पौड़ी, फिर सलोक फिर पौड़ी, मतलब हर पौड़ी तो पहला की है सलोक है, हर पौड़ी तो पहला सलोक है। और इस दे अंदर पौड़ियां किनियां ने 55, पौड़ियां ने 55। ते राग हैगी है गौड़ी राग, राग है जी गौड़ी, गौड़ी राग हैगी है। इस दे अंदर गुरु ते दा जिहड़ा विशा है, गुरु ते परमात्मा दी महिमा दा वखान किया गया है। विशा जिहड़ा इंदा है गुरु ते परमात्मा दी महिमा, गुरु ते परमात्मा दी इस दे विच महिमा हैगी है। और जिहड़ा इहदे विच मंगलाचरण है, शुरू दे विच, शुरू विच की है मंगलाचरण है, और उस नूं आद ते अंत विच पढ़ना है बई, आद ते अंत च पढ़न का उपदेश दिता है। हाँ, तो आपां नूं ये सारा पता लग गया कि 52 अखरी दे अंदर की है कि हिंदी वर्णमाला दे, हिंदी वर्णमाला दे 52 अखर है बई, हिंदी वर्णमाला दे 52 अखरां दे उत्ते आधारित है। परंतु इनका जिहड़ा रूप हैगा वो की है सस्सा कक्का गग्गा, इस तरीके नाल अखर इहदे विच लिखे गए हैं। और हर पौड़ी तो पहला की है सलोक है, और जिहड़ा पहला सलोक है वो मंगलाचरण के रूप दे विच है, और उन्होंने पहला और अखीर दे विच पढ़न वास्ते गुरु साहब ने कहा आ सलोक आद अंत पढ़ना। गुरबाणी च कई थां लिखे हुए है बई इहनूं पहला भी पढ़ना है और अखीर दे विच भी पढ़ना है। और फिर राग केड़ी है, गौड़ी राग है, 52 अखरी राग गौड़ी, महला पंजवां। और विशा की है गुरु ते परमात्मा दी महिमा, और मंगलाचरण के बारे तुहानू दस ही दिता है। और जिहड़ी 52 अखरी हैगी है, आ चीज थोड़ा ध्यान रखनी है भाई। 52 अखरी श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी लिखी है, और एक 52 अखरी कबीर साहब ने भी लिखी है भाई। आप प्रश्न आया है भाई 52 अखरी बाणी किन्ने किन्ने लिखी है? एक कबीर साहब ने लिखी है और एक गुरु अर्जन देव जी ने लिखी है भाई। ते इस विषय विचों अगर तुहानू हजे तक कराए चो कोई भी किथे भी कोई शंका होवे तां तुसी चैट कर दिओ, उनका मैं समाधान कर देवांगा। हुण उस तो आपां अगली बाणी की तरफ जाने हाँ। अगली जिहड़ी बाणी है वह है थिथी थिथ। ये चंद्रमा के हिसाब दे नाल हुंदे है बई। थिथी बाणी है बई चंद्रमा के हिसाब नाल हुंदे है। एकम दूज तीज चौथ एवें करदे करदे चौदस फिर अमावस, इस तरीके नाल। हुण इहदे विच की है कि 17 पौड़ियां है। थिथी दे अंदर पौड़ियां कितनियां भाई? पौड़ियां ने 17 पदे भी आ सकता है भाई, 17 पौड़ियां। और इहदी जिहड़ी राग है वह है गौड़ी राग। राग हैगी है गौड़ी। थिथी गौड़ी महला पंजवां, क्योंकि जिन्होंने बाणी पढ़ी हुई है उन्होंने तो ये चीज याद आ जाती है जो वो एवं करके देखते हैं थिथी गौड़ी महला पंजवां। नहीं तो आपां याद करना है भाई, समझना है, ध्यान से रखना है भाई। थिथी चंद्रमा की थिथां के उत्ते आधारित हैगी है और इहदे विच 17 पौड़ियां हैगियां ने। और इस दे विच जिहड़ी तरतीब है वह मैं दसदा भाई। पहला तो एकम तो लैके चौदस तक 14 पौड़ियां। फिर उस तो बाद जिहड़ी 15वीं पौड़ी है अमावस बारे।
15वीं पौड़ी है मत्स्या बारे बई। 16वीं पौड़ी है वो है पूर्णिमा, पूर्णमासी जिन्हों कहते हैं पूर्णिमा बारे। और जी 17वीं पौड़ी हैगी है अखीरली जी 17वीं पौड़ी है उस विच महात्म दिता गया है बई। 17वीं पौड़ी के अंदर महात्म है 1 तो 14 तक पौड़ियां च एकम के बारे, पहला एकम फिर दूज इस बारे, फिर जी 15वीं पौड़ी है वो अमावस से संबंधित है, 16वीं पौड़ी है वो पूर्णिमा तो संबंधित है, और 17वीं जी पौड़ी है उस दे अंदर, हाँ 17वीं जी पौड़ी है उस दे अंदर महात्म दिता गया है। इस तरीके इसकी है बनतर है। और इस विच प्रभु का सिमरन होर कर्मकांडा तो श्रेष्ठ है। इनका विषय है जिहड़ा, इनका विषय है जिहड़ा वो है प्रभु का सिमरन, जिहड़े होर कर्मकांड ने उन्हां तो श्रेष्ठ है भाई। मतलब प्रभु का सिमरन सब तो श्रेष्ठ है। ते भावां एकम होवे भावां दूज होवे, इस विच ये दस्सिया गया उस दिनां दे संदर्भ दे विच दस्सिया गया है कि एकम दूज तीज इहदे विच आपां नूं किसी प्रकार दे कोई भी ऐजे कर्मकांड नहीं करने जिहड़े आपां नूं परमात्मा तो दूर लैके जाण। इन्हां सारे कर्मकांडां तो उत्ते दस्सिया गया परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो सारे कर्मकांडां तो उत्ते हैगा है। और अखीर दे विच जिहड़ा महात्म है उहदे विच दस्सिया गया है कि सारे ही दिन वार सारे ही चंगे ने, कोई भी दिन वार है वो माड़ा नहीं है। इसी कारण गुरु साहब ने की कहते हैं कि यह तिथि लिखी है भाई, तिथि लिखी है और इहदे 17 पौड़ियां राग गौड़ी के अंदर लिखी हैगी है। और जड़ियां सारियां पौड़ियां उनदे विच भला एकम है दूज है तीज है, क्योंकि कई लोग एकम नूं दूज नूं तीज नूं तीन का भाई चंद बहुत चंगा है ते कई किसी नूं माड़ा मनदे है, कई किसी नूं बहुत चंगा मनदे है किसी दिन नूं। ते इन्हां सारे दिनां दे बारे और जिहड़े कर्मकांड किए जाते हैं उन्हां बारे गुरु जी आ दसदे आ। इन्हां सारे कर्मकांडां तो श्रेष्ठ जिहड़ा कर्म हैगा है वो परमात्मा की बंदगी है, परमात्मा दे नाल जुड़ना हैगा है। ये उनका इहदा विषय हैगा। और 14वीं 15वीं पौड़ी अमावस, 16वीं पूर्णिमा और पुण्य तो संबंधित, और 17वीं च महात्म दस्या गया। और महात्म च लिखा गया है कि सारे ही दिन वार तिथां जिहड़ियां वो चंगियां ने रब दी बनाई हुई, कोई भी तिथ जिहड़ी वो माड़ी नहीं है भाई। इत्थे तक किसी प्रकार की कोई भी चीज समझ ना आई हो। आप 52 अखरी पढ़ी है और पढ़ी है तिथ। हुण आपां उस तो अगे चलते हाँ और करते हाँ गाथा। अगला जिहड़ा अपना गुरु साहब की जिहड़ी रचना है वो है गाथा। गाथा के बारे समझना पऊगा। कई विद्वान तो कहते ने जिहड़ी ये गाथा है ये राग मुक्त बाणी है। पहली गल तो स्पष्ट है भाई जिहड़ी गाथा है वो राग मुक्त बाणी है। और कई विद्वान तो कहते हैं कि यह संस्कृत पाली ते प्राकृत के संयोग नाल बनी है। संस्कृत पाली ते प्राकृत के संयोग नाल बनी है। और प्राकृत भाषा दे विच गाथावां लिखिया जांदा सी, इतिहासिक प्रसंग लिखे जाते सीगे। तां इसका इतिहासिक प्रसंग और प्राकृत भाषा लई भी गाथा शब्द की वरतों की जाती है। और इस दे अंदर 24 श्लोक है और साध संगत की महिमा है जिहड़ी उनका बखान किया गया है। और दस्या गया है कि साध संगत दे विच बंदा रह के तर जाता है। और वैसे भी एक अपने माँ प्यो भी आपको समझाते हैं बई तुसी चंगी संगत करो, जैसी तुसी संगत करोगे वैसे तुहाडी रंगत हो जाणगे बई, उसी तरीके तुसी इंसान बन जाओगे। पर इत्थे गाथा दे अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी आ समझाते हैं कि तुसी जिहड़ी संगत करनी है वो संत जना की संगत करनी है, क्योंकि संत जन है जिहड़े वो तुहानू परमात्मा दे नाल जोड़ देणगे। तुहानू वो कुराहे तो हटा के विकारां तो हटा के तुहानू उस परमात्मा की बंदगी दे नाल जोड़ देणगे। इस कारण इस विच साध संगत की महिमा का बखान किया गया है। गाथा एक ही है कि राग मुक्त बाणी है भाई, किसी भी राग दे विच नहीं लिखी।
क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब के अंदर आ चीज हैगी है कि पहला जी जपजी साहब है राग रहत बाणी, फिर उस तो बाद की कहते हैं रागां नाल बाणी चालू हो जाती है, फिर 31 रागां दे विच लगातार बाणी है बई अड अड बाणी है, फिर उस तो बाद राग मुक्त बाणियां हैं, उन्हां विचों एक बाणी आ गाथा राग मुक्त बाणी हैगी है। और गाथा है जेड़ा उसका जे अर्थ किया जाए उनका अर्थ की है संस्कृत पाली प्राकृत भाषावां का मिश्रित रूप, प्राकृत भाषावां का मिश्रित रूप है भाई, प्राकृत भाषावां का मिश्रित रूप। और कई लोग जिहड़े कहते हैं, कई विद्वान है कहते हैं वो दसते हैं कि जिहड़ी गाथा है वो प्राकृत भाषा च लिखी, प्राकृत भाषा ते प्राकृत भाषा च लिखी लिखिया ऐतिहासिक प्रसंग, ऐतिहासिक प्रसंग कह लो या कथा कह लो, कोई ऐतिहासिक कथा ते प्राकृतिक भाषा लई भी और ऐतिहासिक कथा लई भी ऐतिहासिक प्रसंग लई भी गाथा शब्द की वरतों की जाती है। जो गाथा बई किसी ऐतिहासिक प्रसंग का वर्णन, किसी ऐतिहासिक कथा का वर्णन प्राकृत भाषा च लिखी जाती सी, इस कारण प्राकृत भाषा लई भी वरतों की जाती है। ते अर्थ इहदा की है संस्कृत पाली ते प्राकृत भाषावां का मिश्रित रूप है, उन्होंने भी पुराने समय दे विच गाथा कहंदे सीगे भाषा दे विच अगर इहदा अर्थ करिए तां। और उवें अगर गाथा का आपां अर्थ करिए तो उस दे विच की है कि प्राकृत भाषा च लिखिया होया ऐतिहासिक प्रसंग है और कथा हैगी है, ते प्राकृत भाषा लई और ऐतिहासिक प्रसंग लई कथा लई भी इस दी वरतों की जाती है। और इसका जिहड़ा विषय हैगा वो है साध संगत की महिमा, साध संगत की, साध संगत की महिमा का बखान किया गया है और दसिया गया है कि आपां नूं साध संगत दे नाल जुड़ना है बई। और इनदे विच 24 श्लोक ने बई, राग मुक्त बाणी है, राग रहित बाणी है, तो राग की तो कोई गल ही नहीं रहेगी, राग रहित बाणी है। इस दे विच की है राग मुक्त बाणी है, 24 श्लोक है और विषा साध संगत की महिमा, और इनके अर्थ है जेडे वो ऐतिहासिक कथा प्राकृतिक भाषा कथा तो संबंधित ने, और प्राकृत पाली ते संस्कृत भाषा का मिश्रित रूप है, उन्होंने भी गाथा कहते हैं लैंग्वेज के पक्ष तो, भाषा के पक्ष तो अगर इनका अर्थ किया जाए तो। और जो दूसरे पक्ष तो अगर अर्थ किया जाए तो इनका बनता है ऐतिहासिक कथा, प्राकृत भाषा च लिखी हुई कथा, प्राकृत भाषा कथा आ है भाई। फिर उस तो बाद जे आप गल करिए उस तो अगली रचना दी जिहड़ी गुरु साहब ने रची, गुरु साहब की अगली रचना सहस्कृति है भाई। सहस्कृति है जिहड़े श्लोक सहस्कृति नाम तो है, श्लोक सहस्कृति दे विच श्लोक लिखे हुए है भाई, श्लोक सहस्कृति जिहड़े आ श्लोक सहस्कृति है इस विच 67 श्लोक है भाई, 67 श्लोक ने श्लोक सहस्कृति के अंदर। और सहस्कृति है जिहड़ी वो उस समय इस विच भी जिहड़ी सहस्कृति है वो की है कि सहस्कृति है वो संस्कृत प्राकृत इनका मिश्रित रूप है भाई, संस्कृत प्राकृत ते पाली भाषावां का मिश्रित रूप है सहस्कृति दे विच। सहस्कृति जिहड़ी वरतों की गई है भाषा वो संस्कृत प्राकृत ते पाली का मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप। संस्कृति की जिहड़ी भाषा हैगी है
ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਬਈ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮकांड ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਖਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 67, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੋ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, 67 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਤਲਬ 67 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 67 ਹੋ ਗਏ ਬਈ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ 67 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਬਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਚਾਹੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾना उसका दूजी बार रिवीजन इसी कारण मारदा है कि अगर पहले विच अगर समझ नहीं आया तो दूजी बार पूरी तरह चीज है वो समझ आ जाए। ये सी श्लोक सहस्कृति। हुण उस तो बाद जिहड़ी अगली बाणी है गुरु साहब दी वो है फुनहे। आ रहे भाई फुनहे है बई। इस दे विच 23 पदे ने, 23 पदे या फिर कह लो सलोक। फुनहे एक ही है संस्कृत भाषा के शब्द पुनः तो बने हुए। पुनः संस्कृत भाषा का शब्द है जिहड़ा पुनः दोबारा दूजी बार उस तो यह बनया फुनहे। जे इनका अर्थ आ जाए तो आ है फुनहे। संस्कृत भाषा से अर्थ है पुनः दोबारा दूजी बार। और इस विच जिहड़ा हर शब्द है वो बार बार दोहराया गया है। और इहदे च 23 पदे ने। आ है बई फुनहे। और इहदा जिहड़ा विशा है वो है कर्मानुसार। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਭਾਈ। ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ। ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ जन्म च चंगे कर्म करके परमात्मा नाल जुड़ना। आ इसका विषय है भाई। भाई बंदे नूं की करना है? कर्मानुसार जन्म मिलता है और फिर इस जन्म तो चंगे कर्म करके परमात्मा दे नाल आपां नूं जुड़ना हैगा है। यह आपां नूं दस्सिया गया है फुनहे दे अंदर। और फुनहे जिहड़ा हैगा है वो संस्कृत भाषा दे बई संस्कृत भाषा दे पुनः तो बने है बई। संस्कृत भाषा दे पुनः तो बने है। हिंदी से जिवें कि अपने एवें लिखिया हुंदा है इस तरीके नाल लिखिया हुंदा बई हिंदी विच पुनः। संस्कृत भाषा दे पुनः तो बनया है और इसका जिहड़ा अर्थ है दूजी बार वार वार। फिर इनका अर्थ हो गया फिर दूजी बार फिर
दूजी बार। और इस विच हर शब्द है जिहड़ा, हर शब्द जिहड़ा, हर शब्द, या एवें भी लिखिया हो सकता है भाई हरी शब्द है जिहड़ा वो बार बार दोहराया गया है, बार बार दोहराया होंदा हरी शब्द। ये फुनहे है, एंदे 23 पदे कह लो, तुसी सलोक कह लो, 23 सलोक है जगबीर सिंह के अनुसार। और इनका विषय की है कि कर्मानुसार बंदे ਨੂੰ जन्म मिलता है। जे चंगे कर्म करोगे इस जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ कर्म करिए और चंगे कर्म करके उस परमात्मा ਨਾਲ जुड़ जाइए, ताकि अपना आने वाला ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ है वो भी बड़ा सफल हो जाए। संस्कृत भाषा ਦੇ ਜਿਹੜਾ पुनः शब्द है उस तो ये बने हैं पुनः। और पुनः का मतलब यही है, पुनः करना भी, दूजी बार करना, दोबारा करो, फिर और दूजी बार। और इस दे विच इसी कारण जड़ा हर शब्द है, हर शब्द वो दोहराया गया, परमात्मा रूपी हर शब्द परमात्मा लिए वरत्या गया, वो शब्द है जिहड़ा वो दोहराया गया है इस फुनहे दे अंदर। आ बई सीगा फुनहे। इस दे विचों कोई भी चीज अगर समझ ना आई हो बई, इस तो बाद आप पढ़ते हाँ दिन रैण। दिन रैण जड़ा है अगली बाणी गुरु साहब ने लिखी है, दिन रैण। दिन रैण है जड़ा उस विच के एक शब्द है और उनकी राग केड़ी है, राग है माज, माज राग। और विशा दिन रात दे करन जो कम। करन जोग कम आ की कहते हैं कि दिन रहन दे है बई। एक तो जिन्होंने मझां पालियां उन्होंने पता ही है बई दिन रात की काम है। दिन रात यही काम है बई, सवेरे तो मझ खोलनी हैगी है और बाहर धुप्पे बनना किले दे नाल, और शाम ਨੂੰ फिर की करना है कि फिर दोबारा उस मझ ਨੂੰ की करता है कि अंदर कर देना है। एक ही मझ है, सवेरे किले तो कट के बाहर धुप्पे, शामी फिर भैया अंदर, क्योंकि उन्हें ठंड लग जूगी। तो इसको इंदे नाल कनैक्ट कर लियो बई। दिन रहन एक शब्द बई, एक मझ है बई। पहले टाइम के लोग बहुत बहुत मझ रखते थे, हुण तो कोई बहुत घट परिवार है। तो इसको कनैक्ट कर लियो या तुसी आप ही याद रख लियो बई। दिन रहन एक शब्द है, राग केड़ी है, माज राग है। मझ नाल मिलता जुलता शब्द माज राग है, एक शब्द है दिन रहन। इनका विषय की है, दिन रात दे करन जो कम। और ये जिहड़ी है अध्यात्मकता नाल संबंधित है। तो इत्थे दिन रात, दिने केड़े काम करने हैं, राती केड़े काम करने हैं, इस चीज दे ध्यान धरदे होए दसिया गया है कि आपां नूं कम्मां दे नाल नाल उस परमात्मा दी बंदगी है, परमात्मा दे नाल जुड़ना हैगा है। आ है भाई दिन रहन दे अंदर एक ही शब्द है, और उस शब्द के अंदर की है कि आ चीज है वो लिखी हुई है की है। हुण उस तो बाद आपां अगे चलते हैं भाई। चौ बोले, चौ बोले, जेड़ा चौ बोले है और राग मुक्त बाणी है भाई, कोई राग नहीं भाई। इस विच दिन रहन एक शब्द सी, राग माज सी भाई। मझ अंदर बार करनी है दिन राती, उस दे बारे नाल संबंधित करके इसकी तो माज राग सी। परंतु जो चौ बोले है वो राग मुक्त बाणी है भाई, राग मुक्त बाणी है। और इस विच 11 सलोक है। ये सारे फैक्ट है वो तुहानू याद रखने पैणगे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने पहला तो की कीते है, रागा ते धारित बाणी लिखी है। और उस तो बाद है जिहड़ी अगलियां जिहड़ियां बाणियां हैं जिंदी आप चर्चा कर रहे हैं, वो की कहते राग मुक्त बाणियां हैगियां हन। चौ बोले की राग मुक्त बाणी है और इहदे विच 11 सलोक है भाई। और इनका जिहड़ा तोल है, तोल है, जो वजन कह लिए, मीटर कह लिए, मात्रावां कह लिए, वो दोहरे दे तोल दे है, दोहरे दे तोल दिए है भाई। ये जिहड़े पद ने इनदे 11 सलोक है,
ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਤੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲ 13 + 11 24 24 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ। ਤੇ ਚੌਬੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, 11 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਤੋਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਹੈ ਚੌਬੋਲੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੌਬੋਲੇ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੋਲ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਚੌਬੋਲੇ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੋਏ, ਬੋਲ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਬੋਲੇ ਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਬੋਲ ਮਤਲਬ ਚਾਰੂ ਬੋਲ, ਚਾਰੂ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ, ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬਈ, ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ, बड़े ही प्यारे बोल, प्रभु प्रेम दे प्यारे बोल। हुण इत्थे की है, सब तो पहले चौबोले दे अर्थ बई, चौबोले कई तां कहंदे कि गुरु अर्जन देव जी ने 4 गुरसिखां नाल जिहड़े बोल कीते सन ਉਹ चौबोले सरलेख अधीन दर्ज कीते ने। ते कई लोग एवें कहंदे आ चौबोले मतलब चारू बोल, बड़े ही प्यारे बोल। इस विच ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਹੈ ਚੌਬੋਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। दिन रहन का विशा, दिन रात के कर्म करन जोग ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ परमात्मा ਨੂੰ चेते रखना। एक शब्द राग माज है और चौबोले च राग मुक्त बाणी है, 11 श्लोक है और दोहरे दे तोल दियां है बई, दोहरे का तोल 13 + 11 24 है, उस तोल दियां उस तोल दे विच श्लोक है ਜਿਹੜੇ ਉਹ लिखे गए है। और इस दे विच कई तां कहंदे चौबोले ਜਿਹੜਾ चौबोले ਦਾ अगर ਆਪਾਂ अर्थ करिए 4 गुरसिखां नाल ਜਿਹੜੇ बोल हो रहे ਉਹ चौबोले, और कई चारू बोल मिठे बोल, ते चारू बोल मिठे बोल परमात्मा नाल कीते होए मिठे बोल, ये है चौबोले। उस तो बाद अंजुलियां, अंजुलियां भाई अंजुलियां जिहड़ी बाणी है, अंजुली का सब तो पहला तो आप अर्थ समझिए भाई अंजुलियां का की अर्थ है। अंजुलियां का अर्थ है बुख, आरी बुख, इसनों अंजुली कहते। और लोग की करते हैं कि देवी देवतियां जो भी कोई पानी अर्पण करते हैं इस तरीके अंजुली भरते हैं और एवें करके एवें करते हैं कि भाई इस तो संबंध तैनूं किया जाता है अर्थ। होर कई ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੰਜਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁੱਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਬਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਬਈ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲੀ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਸ बुक पानी की चुल्ली और कई जी अंतम क्रिया के समय जो दाह संस्कार के अंतम क्रिया के समय भी कई पानी की कहते तिल पा के और फिर सटते हैं उस तो भी संबंधित आ हैगा है बई। और इस की है कि दो शब्द है दो शब्द ने बई। इनकी राग की है राग है मारू राग है क्योंकि जो बंदा मर जाता है तो फिर वो पानी दे विच तिल पा के और एवें सिटते हैं। तो इस चीज़ में इस लैन में तुसीं थोड़ा ध्यान रखना है भाई। अंजलियां समझ की है बुक पानी की चुल्ली कई तो आराधना करते टाइम देवतियां की एवें पानी की चुल्ली देंगे हैं उस तो भी अंजलियां मनते हैं। और कई की कहते हैं कि जो कि अंतम संस्कार होंदा है अंतम क्रिया होंदी है उस समय भी एवें भाई कोई बंदा मर जाता है तो उसको कनैक्ट कर लेना है मारू राग दे नाल। भाई कोई बंदा मरदा है उस टाइम भी अंजलियां जिहड़ी है वो कीतियां जांदियां हन ते की राग मारू है और दो शब्द है भाई दो शब्द। इस दे विच की है कि एक तो है चौपदा जेडे दो शब्द है उस विच एक है चौपदा और एक है अष्टपदा। अष्टपदी कह लो अष्टपदा कह लो कुछ भी कह लो भाई चौपदा कह लो भला अष्टपदी कह लो। तो इस विच जेडे चौपदे दे अंदर परमात्मा दे अगे हाथ जोड़ के बेनती की है। इस दे विच परमात्मा अगे हाथ जोड़ के बेनती की है भाई इस दे अंदर जेड़ा चौपदा है उस दे अंदर। और जेड़ी अष्टपदी है उस दे अंदर माड़े कामां दे त्याग बारे दस्सिया भाई माड़े काम छड़ दो भाई माड़े काम छड़ के गुर चरनी लग जो भाई लग जाओ। आ है अंजुलियां दे अंदर अंजुलियां तो जड़ा शब्द अर्थ है वो लिया जाता है बुक पानी दी चुल्ली। दो शब्द है भाई राग की है मारू और जो दो शब्द है वो की है एक तो चौपदा है एक अष्टपदा है भाई। इस तरीके नाल ये बन गए दो एक चौपदा एक अष्टपदा। चौपदे च की लिखा परमात्मा अगे हाथ जोड़ के बेनती अरजोई की है आत्मा की परमात्मा नूं पाउण दी आराधना वही गल्लां होणगियां। और अष्टपदी दे विच की है कि माड़े काम छड्ड के गुरु चरनां च जुड़ना है माड़े काम छड्ड दो और गुरु चरनां दे विच जुड़ जाओ। और अंजलियां तो संबंधित जो कॉलेज लैक्चरर का पेपर होया सी उस दे विच भी आया सीगा क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा जा डीप क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई अंजलियां आप इन्ना को याद कर लेंगे अंजलियां दो शब्द है भाई मारू राग के अंदर और आ जाता है भाई इनका अर्थ की है फिर उत्थे की कहते अपन दिक्कत होती है। पर आप इस तरीके नाल कर रहे हैं कि अपन किसी प्रकार की कोई दिक्कत आवे ही ना। हुण उस तो बाद जे आप गल करिए बिरहड़े की बिरहड़ा भाई अगली बाणी इत्थे तक किसी प्रकार की कोई भी इस विच कोई चीज़ समझने वाली होवे चैट बॉक्स से तुसी लिख सकते हो। हुण उस तो बाद अगली जे आप गल करिए हाँ भाई बिरहड़े तीन शब्द है भाई बिरहड़े च की है तीन शब्द है और हर शब्द च प्यारे शब्द की पुनरावृत्ति है। प्यारे शब्द की पुनरावृत्ति की गई है बिरहड़े के अंदर। तीन शब्द है और शब्दों का जो रूप है वो अष्टपदी है भाई अष्टपदियां भाई तीन अष्टपदियां है बिरहड़े च की है तीन अष्टपदियां है तीन शब्द है शब्दों का रूप की है अष्टपदी के रूप शब्द लिखे हुए है तीन अष्टपदियां। और इहदे जिहड़ा प्यारा शब्द है प्यारे शब्द है उसकी पुनरावृत्ति की गई है। जिहड़ा बिरहड़े सीगा ये लोकगीत सी भाई पुराने समय जिहड़ा बिरहड़ा सी ना ये पुराने दे समय दे अंदर लोक गीत रूप सीगा। अजकल तो
सैड सॉन्ग का तुसीं समझ सकते हो। इस दे विच आपां करिए पुराने बिरहड़े लोक गीता बिरहड़े एक किस शब्द तो बने, बिरहा शब्द तो बने हैं भाई। बिरहड़े किस तो बने हैं? बिरहा तो। बिरहा का अर्थ की होंदा है? विछोड़ा। बिरहा का की अर्थ है? विछोड़ा। पुराने समय के अंदर की होंदा सी कि जिहड़ी इस्त्री सीगी उनका घर वाला जो काम लई दूर चला जाता सीगा ते ओह उस दे वियोग दे विच गीत गाया करदी सीगी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ गीत गांदी सी, लोक गीत ਜਿਹੜੇ ਉਹ गांदी सी, ਉਹ बिरहड़े लोक गीत सन ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। परंतु इस ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ अंदर की है कि मिलाप की गुंजाइश भी होती है। इस ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ अंदर मिलाप की गुंजाइश है। जरूर उनका घर वाला गया होया है, परंतु वो कमाई करके या फिर दोबारा अपना जिहड़ी यात्रा ते हो गया होया है उसनूं पूरी करके वापस वो मुड़ेगा। ये बिरहा है लोक गीत के अंदर। हुण गुरु साहब ने जिहड़े बिरहा की गल की है, वो की जिहड़ी अपनी आत्मा है वो परमात्मा तो बिछड़ चुकी है। आत्मा परमात्मा तो बिछड़ चुकी है और उस परमात्मा के विछोड़े का बिरहा है जिहड़ी वो हंडा रही है और उसनूं उम्मीद है कि एक दिन ये आत्मा है जिहड़ी वो परमात्मा नूं मिलेगी, परमात्मा नूं मिलेगी। आ जिहड़ा बिरहड़े है जिहड़ा इस दे विच इस चीज का वर्णन है भाई। और इहदे विच की है? 3 शब्द है और वो तीनों के 3 अष्टपदियां के रूप दे विच है। और प्यारे शब्द है जिहड़े प्यारे शब्द उनका बार बार संबोधन किया गया है, क्योंकि जिहड़ी पुराने लोक गीत दे विच प्यारे शब्द वो अपने पति लई वरतदी सी और इत्थे अध्यात्मक रंगत दी गई है तां पति रूपी परमात्मा लई जीव रूपी इस्त्री, पति रूपी परमात्मा दे लई जिहड़ा बिरहा हंडांदी है वो बिरहे दा वर्णन है जिहड़ा वो इहदे विच कीता गया है। ते गल वसलां दी भी हुई है, मिलन दी भी हुई है। ये सीगा बिरहड़ा भाई। बिरहड़ा कर लिया आपां, अंजुलियां कर लियां। हुण उस तो बाद अगला जिहड़ा रूप है इस विच बई कोई समझ आया होए कर सकते हो चैट। फिर उस तो बाद जिहड़ा अगला रूप है वह है मुंधावणी। मुंधावणी मुंधावणी का अर्थ की होंदा है? चंगी तरह बनना, चंगी तरह बनना, मोर छाप लानी, मोर छाप लाउणी या बुझारत। बुझारत के तौर पर भी वरतों की जाती है भाई। मुंधावणी बनना गुरु साहब ने की किया सी? श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब है जिहड़ा उनका संपादन किया और संपादन तो रागमाला तो पहला की कहते हैं कि आ बाणी आती है, अखीरली बाणी रागमाला है। रागमाला तो पहला की कहते हैं कि आ बाणी आती है मुंधावणी महला पंजवा। थाल विच 3 वस्तु पई हो, थाल विच 3 वस्तु पई हो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पई हो, जिसका सबस उधारो। आ गल है तुसी सुनिया भी होना है, क्योंकि जो भी आप भोग पाने तो रागमाला तो पहला ही चलता है तो शब्द सुनिया होगा। ते इस दे विच की है कि गुरु अमरदास जी ने मुंधावणी महला पंजवा इहदे च रूपक है जिहड़ा वो थाल का रूपक है। थाल विच 3 वस्तु पई हो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पई हो, जिसका सब सुधारो। जे को खावे जे को बूझे तिसका है और तारो। इस तरीके नाल है भाई। रूपक की है? थाल दा है। जिस तरीके नाल थाल दे विच आपां रोटी खाने आ, भोजन करते हैं, थाल दे विच आपां भोजन करते हाँ और अपनी जिहड़ी भुख है वो मिट जाती है। इसे तरीके नाल आदि ग्रंथ का संपादन करने तो बाद अखीर दे विच श्री गुरु साहब ने मुंधावणी महला पंजवा लिखे भाई मैं भी एक आ थाल बनाया है, इसका जिहड़ा भोजन करेगा उनकी आत्मा की भुख
आत्मा की भुख की अगर शांति करनी है उन्होंने की करना पऊगा, बाणी पढ़नी पवेगी। तो सारी बाणी लिखी गई और अखीर दे विच ये लिखा गया कि थाल विच वस्तु पई है सत संतोख, सत संजम संतोख के बारे की विचार किया गया है। और जेड़ा भी बंदा जिंदे अंदर भुख होगी उस परमात्मा की, वो नाम बाणी नाल जुड़ेगा, इस नूं की कहंदे है गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ेगा और उनकी आत्मा की भुख है वो शांत हो जाएगी। और जब बुझारत के अर्थ दे विच मोहर छाप लाउणी, बई अखीर दे विच की कीता कि अपनी मोहर छाप लगाती इस दे उत्ते आदि ग्रंथ के अंदर, और पूरी गिनती मिनती चीज़ां लिखियां, तुसीं एक भी शब्द है जिहड़ा वो अंदर बाहर नहीं कर सकते। और बुझारत दा इत्थे की है कि जेड़ा भी बंदा जिन दे विच नाम की भुख होएगी वो की कहंदे है कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच डुबकी लगाऊगा, जुड़ूगा उनके नाल, और उनकी हर एक बुझारत है जिहड़ी वो सुलझ जाऊगी। तुहाडे मन च भी किसी प्रकार की कोई भी शंका है, किसी तरीके की कोई भी पहेली है, जे उनका तुहानू अध्यात्मक पहेली है, जे उनका तुहानू कोई भी जवाब चाहिए, तो जे तुसी सिख विचारधारा संबंध होता तो उनका जवाब जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। तो वह बंदा जो जुड़ेगा गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ेगा तो उनकी हर एक जी अध्यात्मक तौर पर उनके कई मन के जो शंकावां चल रही ने, जड़ियाँ बुझारतां चल रही ने, उनका समाधान उन्होंने मिल जाएगा। और ये धन्यवाद के रूप के भी है। गुरु अर्जन देव जी ने धन्यवाद किया उस परमात्मा का, भाई जिन्होंने इन्नी मेहरबानी की और इन्नी बाणी है जी वो रची, और उन्होंने हथों ये आदि ग्रंथ का संपादन करवाया। ते धन्यवाद रूपी शब्द भी है जिहड़े वो मुंदावणी दे विच हैगे आ। बई मुंदावणी बनना, मोहर छाप लाउणी, बुझारत, तीनों के अर्थ तुहानूं दसते हैं। और रूपक की है थाल है, जिवें थाल दे विच भोजन परोसिया जाता अपनी भुख शांत हो जाती है, उस तरीके जिहड़ा आत्मा की अगर किसी को भुख लगी हुई, आत्मा अगर किसी की भुखी है, उन्होंने चैन चाहिए तो उन्होंने नाम नाल जुड़ना पवेगा, बाणी नाल जुड़ना पवेगा, तो आदि ग्रंथ साहिब नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाल जुड़ना पवेगा। तो धन्यवाद दिता है कि परमात्मा ने इस ये सारा कार्य है जो संपूर्ण करवाया। यह है बई मुंदावणी। इस विचों कोई भी तुहानूं समझ ना आवे तो तुसीं चैट बॉक्स से चैट कर सकते हो। हुण उस तो बाद जे आपां गल करिए ते अगला जिहड़ा है गुरु साहब दीयां वारां बई वारां दे बारे एक सूत्र है, बस वो तुसीं याद कर लेना है। भला वारां याद कर लियो, भला सूत्र। रामकली बसंत ने, एक तो रामकली सी एक बसंत, रामकली बसंत ने जैसर विखे गुजरी दे गौड़ी मारी, गुजरी दे गौड़ी मारी। यह की कहते हैं कि एक लाइन बनाई गई है इस तरह ताकि अपन वारां जिहड़ियां वो याद रह जान। भाई गुरु अर्जन देव जी दियां किनियां वारां ने, ते आपां की करना है, रामकली बसंत ने, भाई एक रामकली सी ते बसंत सी, उसने जैसर विखे गुजरी दे कौड़ी मारी। तो इत्थे की है आ गई रामकली दी वार, फिर आ गई बसंत दी वार, फिर आ गई भाई जैसरी दी वार, फिर आ गई गुजरी दी वार, फिर आ गई भाई गौड़ी दी वार, फिर वो आ गई भाई मारी मारू वार। आ भाई 6 वारा ने गुरु साहब ने किनिया वारा लिखी है? 6 वारा। गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर सब तो वध वारा श्री गुरु रामदास जी दियां 8 वारा, उस तो बाद दूजे नंबर ते श्री गुरु
अर्जन देव जी दियां 6 वारां। और जे आल ओवर अगर आप गल करिए, आल ओवर अगर आप गल करिए तो भाई गुरदास जी दियां सब तो वध वारां भाई गुरदास जी दियां 39 वाला प्रोफेसर जगबीर सिंह के अनुसार। कई 40 वारां दसदे है, राजस्थान बोर्ड की किताब के भी 40 वारां है। जो आप भाई गुरदास जी करावांगे तो करांगे खास चर्चा है इस बारे, हर एक वार के उत्ते और 39 वारां के उत्ते 40 वारां के उत्ते। सब तो ज्यादा वारां आल ओवर अगर गल करिए भाई गुरदास जी दियां, दूजे नंबर ते श्री गुरु रामदास जी दियां अध्यात्मक वारां, फिर तीजे नंबर ते श्री गुरु अर्जन देव जी दियां। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गल करिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गल करिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भाई गुरदास जी की बाणी दर्ज नहीं है, तो सब तो ज्यादा वारां गुरु रामदास जी दियां, दूजे नंबर पे श्री गुरु अर्जन देव जी दियां वारां। केड़ियां? रामकली दी वार, बसंत दी वार, रामकली दी वार, बसंत दी वार, जैतरी दी वार, गुजरी दी वार, मारू वार, गौड़ी दी वार। ये 6 वार है भाई। भला तुम सूत्र नाल याद कर रहे हो, रामकली बसंत ने, जैसर विखे, गुजरी दे गौड़ी मारी। भला तुम एवें वारां याद कर लियो। जड़ी बसंत दी वार है वो सब तो छोटी वार है भाई, सब तो छोटी वार है बसंत दी वार। सब तो छोटी वार बसंत दी वार है और एंदे विच भाई 3 ही पौड़ियां है, सिर्फ 3 ही पौड़ियां है, कोई श्लोक दर्ज नहीं गा। ऐसा कोई भी श्लोक दर्ज नहीं है। कई इन्हू अधूरी वार भी कहते हैं और कई इन्हू कहते हैं भाई सब तो छोटी वार है और ये पूरी वार है। बसंत दी वार सब तो छोटी वार 3 पौड़ियां, कोई श्लोक इहदे नाल दर्ज नहीं है। ये तुहानू पहला भी मैं दसिया सी भाई। और उस तो बाद की है जी गौड़ी दी वार है, जी गौड़ी दी वार है, गौड़ी दी वार भाई आ जी वार है गौड़ी दी वार, ये राय कमाल मौज दी वार, राय कमाल मौज दी वार है जी उसकी धुनी उत्ते गाउण का उपदेश दिता है गौड़ी दी वार नूं। राय कमाल मौज दी जिहड़ी वार है उस वार की धुनी के उत्ते गाउण का उपदेश दिता है गौड़ी दी वार नूं। बाकियां वारां नूं किसी नाल गाउण का उपदेश नहीं दिता, सिर्फ गौड़ी दी वार नूं राय कमाल मौज दी वार की धुनी के उत्ते गाउण का उपदेश दिता है। और इन्हां वारां दा जिहड़ा विशा है वो है गुरु महिमा ते प्रभु महिमा भाई, गुरु ते प्रभु दी महिमा भाई। ये इन्हां वारां दा विषय है भाई, गुरु ते प्रभु दी महिमा। इत्थे तक तुहानू कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई है तो तुसी पूछ सकते हो भाई, कोई भी चीज समझ नहीं आई पूछो। हुण एक चीज जी वो अपनी रह गई है भाई, गुरु साहब दी की है 30 रागां च बाणी लिखी है, 30 रागां च बाणी लिखी है गुरु साहब ने। 31 राग है जैजावंती, उस दे विच सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बाणी लिखी है और किसी गुरु ने बाणी नहीं लिखी। 30 रागां इस विच बाणी लिखी है गुरु साहब ने। होर भाई कोई चीज है जिहड़ी अगर तुहानू समझ नहीं आई तो तुसी पूछ सकते हो। हुण अपना जिहड़ा डाउन सैशन है वो चालू है भाई, किसी ने कोई भी चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो। समा हो चुके हैं और अज जिहड़ा आपां समझाया इस दे विचों कोई भी अज विचों किसी ने चैट ही नहीं की, शायद मैनूं लग रहा है कि जिहड़ा समझाया सी वो समझ आ गया होवेगा। तुसी कोई भी किताब पढ़ोगे ना तो तुसी तुहानू ये देखियो गुरु अर्जन देव जी के बारे 1 पेज होणगे या 2 पेज होणगे बस। कोई किताब चक लो, तुसी कृपाल कसेल की किताब चक लो, भला तुसी जगबीर सिंह की किताब चक लो, जै 4